My dear students, let us start second last chapter of class 10 in chemistry, that is carbon and its compound. Okay. Firstly, we have to come to know about what is carbon. Carbon is a non-metal. It is an element that is found in the earth crust, and the earth crust has only 0.02%, but in the form of mineral carbonate. In the form of minerals carbonate, as calcium carbonate, you can say calcium carbonate, sodium carbonate, and so on, etc. And 0.03% in the form of gaseous, in the gaseous form, that is carbon dioxide. And the compound that is made up of, that is composed of carbon, known as the compound that is made up of carbon, known as carbonic compound, you can say organic compound. Carbonic compound, you can say organic compound. And a study of organic compound, a branch of chemistry in which we will study about organic compound, known as organic chemistry. This is a part of organic chemistry. Organic chemistry, and the term organic chemistry first time used by a Swedish chemist known as Berzelius. सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टर्म था उसको सबसे पहले फैसिलिटेट किया, यूज किया एक स्विडिश के जो केमिस्ट थे, उनका नाम था बर्जेलियस. बर्जेलियस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टर्म दिया था. एंड सिंस द term organic refer, you can say the term organic refer, or you can say signify life. The term organic refer, you can say signify life. That's why organic chemistry is also known as living chemistry. Organic chemistry is also known as living chemistry. Is it clear? Living chemistry. It means you can say carbon is one of the important components that sustain our life, that maintain our life, that signify life. जो कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इसीलिए हम कार्बन को लिविंग कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज कार्बन फॉर्म्स a dozen of organic compound that is used by human beings. It means you can say carbon signify life of plants and animals. जो कार्बन होते हैं वह प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. इसीलिए ऐसे एलिमेंट को, ऐसे नॉन मेटल को हम लोग लिविंग कंपोनेंट भी बोलते हैं. क्लियर? तो कार्बन इज कंपाउंड, and the compound that is composed of carbon known as organic compound, and the branch of science in which we study about organic compound known as organic chemistry. And the term organic chemistry was used by a Swedish chemist known as Berzelius. A Swedish chemist known as Berzelius. Since the term organic signifies life, that's why organic chemistry is also termed as living chemistry, in which we study about compound that is made up of carbon. That's why we can say carbon is one of the important living component, and it forms a dozen of organic compound that is utilized by human beings, such as you are taking in the form of food. Food is also organic compound. Food acts as fuels that give us you energy, that sustain your life, that provide you life process. है कि नहीं? आप जो है फूड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrate is also organic compound that is made up of carbon. Fat, इससे क्या आपका है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है. लेकिन क्लास 10 you will study about carbon and its compound. आपका जो 30% रिड्यूस सिलेबस होने के बाद आपका जो कार्बन कंपाउंड क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना आपका कार्बन क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्सेटाइल, आई एम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक. Versatile nature of carbon. Second one,
versatile of carbon. First topic is catenation. Second one is tetravalency. You can say tetravalent. Tetrahedral. Covalency. Homologous series. These are the important part of the chapter carbon and its compound after 30% reduced. ठीक है, 30% reduced होने के बाद अपन जो स्टडी में जो पढ़ना है, कार्बन क्या है, कार्बन कंपाउंड क्या है, उसके वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, उसमें कैटेनेशन पढ़ोगे, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट, टेट्राहेड्रल, कोवैलेंसी और होमोलोगस सीरीज। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम कार्बन के बारे में। कार्बन के वर्सेटाइल के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि कार्बन को अब लेते हैं, कार्बन क्या आपका नॉन मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है। यू टेक इट्स एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 और 4। ठीक है, यस 4 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस 4 जो क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होगी 4 होगी, और कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेल लिखते हैं तो 2 और 4 न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्लोज है। न्यूक्लियस कार्बन जो है न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होने की वजह से या जो है, अगर इसको क्योंकि इनका 2 और 4 है, तो आप जानते हो कि अगर आउटर पोस्ट सेल में 8 या 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। इस स्टेबिलिटी को स्टेबल बोलते हैं। इस स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए कार्बन क्या करना होगा, या तो 4 लूज करना होगा, रिमूव करना होगा, या 4 क्या करना होगा, गेन करना होगा। बट ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन के होने की वजह से, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, ये 2 है, 3, 4, यहाँ देखो बेटा ये 2 है, 4 है, और न्यूक्लियस बेटा ये काफी क्लोज है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो उस दौरान क्या चाहिए, इनको एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। या आपको क्या करना हो, रिमूव करने के लिए भी, टू रिमूव आयरन फॉर रिमूव और टू वेल। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन कार्बन डू नॉट नाइदर फॉर्म C4 प्लस एंड C4 माइनस। ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से, न्यूक्लियस से काफी क्लोज होने की वजह से, या न्यूक्लियस से ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्स को लिया जा रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, तब इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा तब इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी कारण कार्बन कैन नाइदर फॉर्म 4 प्लस आयन कैटायन और एनायन। दैट्स व्हाई टू अचीव स्टेबिलिटी कार्बन शो कोवैलेंसी, कार्बन शो कोवैलेंसी, कार्बन जो है कोवैलेंसी को शो करता है। कार्बन क्या शो करता है, कोवैलेंसी। इट मींस यह क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। कार्बन शो म्यूचुअल शेयरिंग, कार्बन जो है म्यूचुअल शेयरिंग करता है। इट मींस इट्स शो कोवैलेंसी and form covalent compound, and form covalent compound. Is it clear? समझ आया कि कार्बन जो होते हैं बेटा, ना यह लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही गेन कर सकते हैं। वाई, अपनी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए, जिसके वजह से टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कार्बन शो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर एटम्स and they show covalency and form covalent compounds. इधर के लिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कार्बन क्या करता है, कोवैलेंसी करती है। अब कोवैलेंसी का आधार पर मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, इसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, 1, 2,
3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। इनको 4 कहीं से और चाहिए, इनको 4 है कहीं से तो और चाहिए, तो ये क्या करता है हाइड्रोजन के साथ मिलके या क्या करता है कोवैलेंसी कर लेता है। वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो क्या करता बेटा इससे जो है ये म्यूचुअल शेयरिंग करके या सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंसी करती है। अब यह एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग किया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन किया म्यूचुअल शेयरिंग किया, हाइड्रोजन हो गया, एक म्यूचुअल शेयरिंग किया हाइड्रोजन का, ये भी किया हाइड्रोजन का, और ये क्या करेगा या जो है सबके 2 ले लेगा। इस कार्बन की वैलेंसी भी ग्रुप हो जा रही है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी ग्रुप हो जा रही है। ये क्या कर रहा है ये कोवैलेंसी बना रही है CH4, ये मीथेन कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है। ये आपका हो गया कोवैलेंट कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन। देख लिया। अब बेटा यहां पे देख रहे हो कार्बन जो है इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है, जिसके वजह से कार्बन वैलेंसी 4 होने की वजह से हम कार्बन क्या बोल सकते हैं टेट्रावैलेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया कार्बन का टेट्रावैलेंट। और चूंकि कार्बन का मैंने म्यूचुअल शेयरिंग बताया था कि कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 C बन रहा है, जिसके वजह से ये क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग टेट्राहेड्रल। One property is tetrahedral and other property is tetravalent। टेट्रा बोले तो 4, वैलेंट बोले तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेड्रल बोले तो 4 है। Is it clear? First property is tetrahedral, second one is tetravalent, second one is tetrahedral, and it having valency 4 electron that is present in the valence cell, that is outermost cell। क्या आपका outermost cell क्या होगा L। Clear? The outermost cell is on the valence cell and the number of electrons that present in outermost cell is on the valence electron। इसी क्या कहलाएगी इसकी वैलेंस। क्लियर? आया सबको समझ आ गया? नेक्स्ट, one of the important property of carbon is that it forms a long chain of compound. It forms a long chain of compounds by self combination or by self linking। Carbon having one of the important property that is catenation। कार्बन की important property होती है क्या कहलाती है catenation। ठीक है, तो catenation means self linking capacity, self linking or you can say self combination। बेटा बताया है कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाएगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने की जो प्रोसेस होती है, जो कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी हो रही है कार्बन की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज सेल्फ लिंकिंग और सेल्फ कॉम्बिनेशन। सिंगल एटम का यह कार्बन एक हुआ, इससे बना, इससे बना, इससे बना, इससे बना, इनके अंदर क्या हो रहा है बेटा सेल्फ लिंकिंग की कैपेसिटी हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा लॉन्ग चेन बनाना है, क्या कहलाएगा आपका कैटेनेशन। ठीक है, तो सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी जो होगी फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कार्बन रिएक्ट विद सिमिलर एटम ऑफ अदर। ठीक है, अदर स्पीशीज बोल सकते हो। ये कार्बन जो है अपने एलिमेंट से आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए, आपस में सेल्फ लिंक होते हुए एक लिंकेज बन रहा है, लिंक बन रहा है, एक आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं, सेल्फ हो रहा है कंबाइन। क्या बना जा रहा है आपका कैटेनेशन। इसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कार्बन। समझ आ गया? ये आपका कहलाता है सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी या सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटेनेशन। समझ आया इतना? आगे सबको दीपू म्यूचुअल शेयरिंग मींस क्या? म्यूचुअल मतलब पारस्परिक। पारस्परिक क्या होता है? जो आपस में शेयर करना। ठीक है, म्यूचुअल क्या होता है? पारस्परिक मतलब जो आपस में संबंध है, चाहे म्यूचुअल कोरिलेशन है
जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, आपका म्यूचुअल सेटलमेंट, आपका भी नुकसान नहीं किया, मेरा नुकसान नहीं किया। जैसे आपका बायो पढ़ोगे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एल्गी और फंगाई का लिकेन जो था, लिकेन था या लिकेन था, जब पढ़ोगे उसमें क्या था, एल्गी और फंगाई का था। तो एल्गी का क्या था, वो क्या था, वो जड़ को क्या दे रहा था, हाँ फूड को दे रहा था, और फंगाई क्या कर रहा था, नेचुरल। इसी तरह आपका जो है जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूम्स